Hello all students. In this video we shall continue the chapter number 7, The Adventure, written by Jayant Narlikar. So हमने पार्ट 1, 2 और 3 देखा. अब पार्ट 4. जैसे कि हमने देखा था घायतों के पंत जो है उनकी वो कोमा में चले जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है इस दौरान. अब जब उनका एक्सीडेंट हो गया है तो वो जब आ रहे थे मुझसे स्पीच दे के वापस, तो वो सोच रहे थे कुछ, इस वजह से उन्हें कोमा में भी सारे इमेजिनेशन दिखाई देते, थॉट्स दिखाई देते. जब 2 दिन तक वो कोमा में होते. अब इस पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट को, उसमें हमें क्लियर होगा कि एक्चुअली ये सब हो क्या रहा था और इमेजिनेशन ऐसे वो इमेजिन क्यों कर रहे थे. So now let's get that and continue the story. That is all I have to tell, Rajendra. All I knew is that I was found in the Azad Maidan. In the morning, I was back in the world I am familiar with. Now where exactly did I spend these 2 days when I was absent from here? Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him with while to reply. Professor, before just a period, to your crossing with a trunk, with the trunk, what were you doing, Rajendra? अब यहाँ पे देखिए वो राजेंद्र जो उनके फ्रेंड थे उनको वो सब बताते हैं कि पता नहीं मैं 2 दिन से कहाँ था, अब मैं रियल वर्ल्ड में आया हूँ ऐसा लग रहा है. 2 दिन मैंने कहाँ स्पेंड किया मुझे भी खुद कुछ पता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं घायतोंडे पर गंगाधर पंत घायतोंडे. तो राजेंद्र जो है वो कह रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, और वो कह रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या कर रहे हैं. तो वो कहते हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ दी, मतलब कि आप जब आ रहे थे वापस पिछले थे तो आप क्या क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, तब आपको कुछ याद है 2 दिन पहले आप क्या कर रहे थे. आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थियरी. कैटास्ट्रॉफ थियरी क्या होता है कि कोई भी चेंज है, छोटे से सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के कारण जो पूरा सर्कल है, पूरी जो जाल बना हुआ है पहले से चला आ रहा है हिस्ट्री या फिर कुछ भी और चीज़ है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है, उस चेंज की वजह से सब कुछ इफेक्टेड होता है. तो उस इफेक्ट को, उस चेंज को छोटे से कैटास्ट्रॉफिक थियरी कहते हैं. उस बारे में ये हमारे जो घायतोंडे पंत है वो सोच रहे होते हैं. राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल. उन्होंने कहा हाँ शायद आप उसी के बारे में सोच रहे थे. वो स्माइल करते then smiled smugly. In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok, look at this. वो कहता है कि तुम ऐसे स्माइल मत करो, तुम्हें क्या मेरा in case of think you think तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स कर रहा है अलग अलग में, और तुम मजाक, मतलब मेरे अंदर जो है वो अलग ही ट्रिक्स चल रहे हैं, माइंड में कुछ अलग चल रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे. एंड triumphantly, Professor Gaitonde produced his vital piece of evidence, a page torn out of the book. Rajendra read the next on the printed page, and his face underwent a change. Gone was the smile, and in its place came a grave expression. He was visibly moved. Gangadhar Pant passed home his adventures. I had adventurely slipped the bukhar in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had an internet to return it the next morning, but since that in the melee of Azad, melee means क्या होगा, confusion in Azad, the book was lost. Only this chunk of page reminded, and luckily for me, the page contains very vital evidence. Rajendra again read the page. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet, and how that event taken as an omen by the Maratha army turned to the tribe in their favor.
Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of Bhaubansis Bakar, Bhau Sahib Bansis Bakar, open at the relevant page. The account runs thus. And the Vishwas Rao guided his horse to the mill where the allied troops were fighting, and he attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा इंसिडेंट मैं आपको समझाती हूँ, तो पहले हम रीड कर लें. प्रोफेसर गाइड ओनली यू हैव गिवन मी फूड फॉर डिनर. थॉट until I show this material evidence, I had to simply put your experience down to a fantasy. But facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. Facts? What are the facts? I am trying to know, Professor Gaitonde said. अब देखिए पूरा इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ है. गाइटोंडे कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है, मुझे कुछ हिस्ट्री में अलग लग रहा है. और क्या लग रहा था उन्हें कि विश्वास राव जो थे वो बच गए थे, और इस वजह से जो था मराठा एम्पायर था वो पूरा पावरफुल हो गया था. पर ऐसा रियली में नहीं हुआ. जो भाऊ साहब बंसी बखार का जो एक पेज था वो अपने साथ लाए थे लाइब्रेरी से. बुक तो उन्होंने कहीं खो दी थी, पॉकेट में थी जो वो आज़ाद मैदान में कहीं खो गई थी, क्योंकि क्राउड में सब लोग उन्होंने घेर दिया था. जो वो स्पीच देने चले थे वहाँ पे तब, तो इस वजह से वो बुक तो कहीं खो गई, पर वो पेज जो था उन्होंने अपने पॉकेट में रखा था नोट डाउन करके, वो उनके पास था. वो उन्हें दिखाते हैं राजेंद्र प्रसाद को. राजेंद्र प्रसाद सेम कॉपी है बखार की, वो लाते हैं और उनसे देखते हैं. उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि विश्वास राव की मौत हो जाती है बुलेट लगने की वजह से, और जो मराठा एम्पायर था वो यहीं पे खत्म हो जाता है. पर अब प्रोफेसर गाइटोंडे को कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है. मैंने तो जो पढ़ा था वो अलग था, इसमें अलग लिखा है. दो सेम बुक की दोनों कॉपी में अलग अलग कैसे लिखा हो सकता है? तो प्रोफेसर गाइटोंडे को राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि ये शायद फैंटेसी है, आपका इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है. और गाइटोंडे बोलते हैं प्रोफेसर की फैक्ट कैसे फैक्ट्स की बात कर रहे हो आप? राजेंद्र प्रसाद से कह रहे हैं. Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. Finally, he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of true scientific theories as known today. Wherever I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through the fantasy's experience, or more correctly, a catastrophic experience. Please continue, Rajendra. I am all ears. Professor Gaitonde realized. Rajendra continued the pacing as he. देखिए राजेंद्र प्रसाद को पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या इमेजिन किया था इन्होंने. तब वो उन्हें सब समझ आता है धीरे धीरे, और वो बोल रहे हैं कि देखिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप आराम से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. वो गाइटोंडे से कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद बोलना शुरू करते हैं. वो कहते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ इससे पहले आप क्या सोच रहे थे? कैटास्ट्रॉफी एक्सपीरियंस करना चाहते थे आप, थियरी के बारे में सोच रहे थे, और वो एक्सपीरियंस आप किस में लाना चाहते थे? हिस्ट्री में. इस वजह से शायद ये सब हुआ. आगे वो बोल रहे हैं प्रोफेसर गाइटोंडे कि हाँ बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ. You have heard a lot about the catastrophic theory at that seminar. और जो उन्होंने सेमिनार लिया था गाइटोंडे ने, उसी सेमिनार में उन्होंने बहुत सारा सुना था कैटास्ट्रॉफी के बारे में. Let us apply it to the battle of Pant. और हाँ हम चलो इस जो कैटास्ट्रॉफी थियोरी है तो छोटा सा चेंज हो पूरी हिस्ट्री में या पूरे सर्कमस्टेंसेस में चेंज कैसे जाता है. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हम पानीपत पे ये अप्लाई करते हैं, तो चलो हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं. Was found face to face on open ground of excellent example of this theory. The Maratha army was facing Abad Ali's troops on the field of Panipat. There was no great
a disparity between the latter's troops and the opposing force. Their amount was comparable. So a lot depended on the leadership of the morale of the troops. The junctions at which Vishwasrao, the son of and his heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. As history has it, his uncle Khausa rushed into the mill and was never seen again. Whether he was killed in battle or survived is not known. But for the troops at the particularly moment that belonged to losing their leader was a crucial. They lost their moral and fighting spirit. They follow unutterable. अब यहाँ पे बात करें पानीपत पर अगर हम ये अप्लाई करते हैं कैटास्ट्रॉफी। अब विश्वासराव जो है वो ट्रूप में चले गए थे। अब ट्रूप किस पे डिपेंडेंट करता है? जो उसका किंग होता है या फिर जो उसका सेनापति होता है उस पर। अगर वो मर गया तो ट्रूप है वो खुद ही हार मान लेता है, वो लड़ना छोड़ देता। तो यहाँ पे ये बोला कि भाऊ साहब भी थे, वो ऐसे मेल में घुस गए, उन्होंने फिर वो आज मतलब उनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो मर गए, वो जिंदा थे, उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में हिस्ट्री में कुछ लिखा नहीं गया। तो इस वजह से अब उनके ग्रुप ने तो ये सोच लिया कि वो मर गए हैं। अगर उनके ग्रुप ने ये सोचा है कि वो मरे नहीं है तो शायद वो लड़ते रहते और वो जीत जाते मारा। तो उन्होंने ये सोचा तो विश्वासराव है या भाऊ साहब है वो मर गए हैं तो उनका किंग ही मर गया है तो वो लड़ना छोड़ देंगे। ये जो उनके मॉरल होते हैं वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके ट्रूप्स हैं। ट्रूप मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो हमारा जो चैप्टर है आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।